नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आपका स्वागत है। कोविड संक्रमण हर दिन के साथ एक नई चुनौती लेकर आ रहा है। मामले बढ़ रहे हैं और जरूरी है कि वैक्सीन लगवाने के साथ ही हम बुनियादी सावधानियों का पालन हर हाल में करें। घर से बाहर और दफ्तर में काम करते वक्त मास्क पहनना बेहद जरूरी है और हैंड और ओरल हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। आज के इस डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में हम बात करेंगे होम आइसोलेशन की, यानी कि अगर किसी व्यक्ति में कोविड के मामूली लक्षण हैं तो वो घर पर ही रह के किस तरह से इसका उपचार कर सकते हैं। बहुत से कोविड मामलों में घर पर ही इलाज संभव है, लेकिन जरूरत है बेहद सावधानी की। क्या है ये सावधानियां और इस दौरान किन किन अहम बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में आज हम अपने इस शो में बात करेंगे। और इस बारे में सलाह देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल भी मौजूद रहेगा। अगर आप इस संबंध में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 011-233-87-031। दिल्ली के बाहर से फोन करने वाले 011 जरूर लगाइएगा। इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम को मेरी सहयोगी प्रीति हमारे साथ आगे बढ़ाएंगी। प्रीति, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। Thank you so much, Teji. And yes, we welcome all our viewers to this special edition of Dr. Speak, the program which we get to you every day, twice a day, to ensure that all your doubts and myths regarding COVID-19 and different aspects, different problems related to the pandemic are dealt with. Today, we are joined by three doctors and we are discussing home care during COVID-19. We are joined by Professor Anup Kumar. He is HOD, Urology and Transplant of the Hospital. We're joined by Professor Dr. Kumar Dada. He's Professor, Department of Medicine, Maulana Azhar Medical College. We're also joined by Dr. Rohit Sari, Principal Consultant, National Institute of Chief Doctors and Respiratory Diseases. As put forward by my co-anchor, you can put all your questions to the telephone line. The telephone numbers are flashed on your screen. Also, you can put your questions to the doctors through face-to-face and Twitter. So, begin with Dr. Sari. I would want you to clarify and explain to us in detail when it is that a person can be cured at home. What are the symptoms? Or for that matter, put it another way, when is it that a person needs who is in home isolation during COVID, when he's stuck with COVID-19, when is it that he has to be taken to a hospital? Today we are in a very, very grim situation and the battle actually has gone much ahead. It's been over a year since, we have been fighting this particular war. And we continue to reiterate the basics for looking forward, when to suspect, what to do, when to track. And I think the essential thing is that if there is anyone who has been in contact with any person who is COVID positive or suspected to be COVID, that means having some symptoms which may relate to COVID in the form of fever, cough, or general malaise even, some body aches, some easy fatigability, then this particular individual has immediately to isolate himself in his house. That is the first thing that one must do, that you have to isolate yourself in the house and not go around. Secondly, you have to continue following the three pillars that we talk of: washing your hands, covering your face with a mask or with any cloth, and of course keeping distance. And if you are suspected of having this particular infection, then please get yourself tested for it at the nearest health facility. And by the time the report comes to you, you have to continue isolating yourself. It is very important to do so because you see, sometimes people who may be positive, they may get a report after a day or 2 days, and in that process may be actually transmitting the disease. So it becomes very crucial for us to understand this point, that the moment you develop any of the initial symptoms which I've already stated, please isolate yourself and get yourself tested. Now, the other thing is that while at home, you see, there is something which helps us to monitor
how much oxygen we have in our body, because oxygen is the one which will keep us living. And if that oxygen value remains at 94% or above, as measured by a device what we call as the pulse oximeter, then we continue to be at home. We do not panic and rush to the hospital. Remember that our hospitals are there for more serious patients, and if we flock around the hospitals, all of us move to the hospitals, then the most needy will not get the care. So by and large, as long as your oxygen saturation is more than 94, please stay at home and follow these precautions. The second part is that, okay, during this particular mild phase, one is the oxygen saturation we have to keep an eye on, and secondly, we have to understand what do we mean by a high risk group, because in the high risk group one has to be more cautious, and it is this group which comprises of those who are more than 60 years, those who are having disease of any other organ of the body, like the lungs, the heart, the kidneys, the liver. If there is anyone who is undergoing some therapy for which may immunocompromise the individual, like therapy for cancers and all, these are the individuals who are more at risk of developing more severe disease, more serious disease. Hence, monitoring of this group becomes all the more essential. So, friends, what I will say is, look out for your symptom, get yourself tested, isolate yourself, and if you belong to the high risk group, immediately get in touch with some medical doctor or the other. There are some other drugs also which are given at this particular stage, and these drugs comprise primarily of vitamins. High dose of vitamin C is given, vitamin D is given, zinc is given. And we are also advocating under the national program that individuals may get a drug called ivermectin. Don't take it on your own, please. I am just telling these drugs to make you aware that there is some medicine which may be required, but get in touch with your doctor for that. जी बिल्कुल, यानी कि दवाइयाँ अपने आप नहीं लें, दवाइयाँ मौजूद हैं और अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, चाहे आप होम आइसोलेशन में भी हैं। डॉक्टर मृदुल कुमार और डॉक्टर अनूप कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मृदुल, आपसे ये समझना चाहूँगा कि जिस तरह से होम आइसोलेशन में डॉक्टर सरीन कह रहे थे कि जब ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करते रहें और जब वो क्रिटिकल सिचुएशन हो तो भी जब वो एक थ्रेशोल्ड को पार करे तभी उस समय में डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। आपसे एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जिनमें अलग अलग सिम्टम्स नज़र आते हैं। क्या किसी पर्टिकुलर सिम्टम्स, जिस पर्टिकुलर सिम्टम्स किसी पर्सन में हो, किसी व्यक्ति में हो, उसी को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ऑक्सीजन मॉनिटर करने का, या फिर कोई भी कोविड पॉजिटिव हो और उसमें किसी भी तरह के सिम्टम हो, उनको सबको ऑक्सीजन मॉनिटर करते रहना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ऑक्सीजन मॉनिटर करना सभी मरीजों में जरूरी है, लेकिन विशेषकर जिनको ज़्यादा खांसी हो रही है या जिनको थोड़ा कंजेशन लग रहा है या फिर उनका फीवर तेज चल रहा है, क्योंकि इस बार के कोविड में हमने ये देखा है कि काफ़ी मरीजों को, काफ़ी जो इससे पीड़ित होते हैं, उनका फीवर बहुत हाई ग्रेड रह रहा है और बहुत दिनों तक रह रहा है। 7 दिन तक भी रहता है, 8 दिन तक भी रहता है, और ये बहुत ज़रूरी है उन सभी मरीजों में जिनको ये सिम्टम्स हैं। हालांकि सभी को मॉनिटर करना चाहिए एटलीस्ट दिन में 2-3 बार, पर इन मरीजों को हो सकता है कि और ज़्यादा इंटेंसिवली मॉनिटर करें। और मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगा कि 4-5 दिन के बाद अगर आपका फीवर रहता है या आपको सिम्टम्स कफ के ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप अपना ऑक्सीजन, जब फीवर ना हो, गोली आपने ले ली है और ठीक हो रहा है, उस टाइम अगर आप 5-6 मिनट चलें और फिर ऑक्सीजन चेक करें, चलने के पहले, चलने के बाद, ये भी देखना शुरू करें, केवल बैठे बैठे ना चेक करें। अगर उसमें कोई ड्रॉप होता है तो वो भी हमें एक इंडिकेटर होता है कि हम सोच सकते हैं कि आपकी बीमारी थोड़ी सीवियर हो सकती है, थोड़ी मॉडरेट ग्रेड की हो सकती है, तो आपको फिर डॉक्टर से संपर्क करके कुछ दवाई शुरू की जा सकती है। तो ये दोनों चीज़ करनी है आपको, जिनमें खांसी है, जिनमें थोड़ा कंजेशन महसूस हो रहा है, जिनको फीवर हाई चल रहा है ये कैटेगरी में, और जिनको और बीमारियां हैं साथ में क्रॉनिक,
उनको थोड़ा ज्यादा इंटेंसिवली ऑक्सीजन मॉनिटर करना है और लेवल 94 या उससे ऊपर होना चाहिए। या फिर आप ये देखते हैं कि आपका पहले 98 रह रहा था और अब सडनली 94 95 रहने लग गया है, तो वो भी एक इंडिकेटर है जब आप अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे। हालांकि आपका उस समय फीवर सेटल हो गया होगा, तो उस समय डॉक्टर आपको कहेंगे कुछ ब्लड टेस्ट भी कराने का कह सकते हैं। पर जो सीटी स्कैन कराने के लिए भगते हैं आप लोग, वो बिल्कुल जरूरत नहीं। और कोई भी ब्लड टेस्ट पहले 4-5 दिन में कराने की जरूरत नहीं होती है। उन व्यक्तियों को जरूरत पड़ सकती है जिन्होंने अपना काउंट करने में दिन में गड़बड़ कर दी। वो पहले 2-3 दिन उनको बदन दर्द था, कोई बुखार नहीं था, और उन्होंने वो काउंट अपना शुरू किया जिस दिन से फीवर हुआ, तो कभी वो कैलकुलेशन 5-6 दिन का जो है कैलकुलेशन कम कम ज्यादा हो सकता है। पर अगेन अगर उनको सिम्टम्स आने लग गए हैं, ज्यादा खांसी होने लग गई है, या उनको हैवीनेस लग रही है चेस्ट में, या उनका फीवर तेज हो रहा है, तो फिर आप कुछ ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर अनूप भी हमारे साथ मौजूद हैं, और क्योंकि ये शो फेसबुक पर भी लोग इस संबंध में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और हमने अपनी फ़ोन लाइन भी खुली रखी हुई हैं। अगर आपके किसी भी तरह के सवाल हैं दर्शकों के, तो आप हमें पूछ सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं या फेसबुक पर अपने क्वेश्चंस हमारे पास भेज सकते हैं। डॉक्टर अनूप, हमारे पास फेसबुक पर एक क्वेश्चन आया है। भावना शर्मा ये पूछना चाहती हैं कि उनके फादर इन लॉ होम क्वारंटीन है। एक बार अगर वो रूम से बाहर जाते हैं तो ऐसे में उन्हें उस रूम को सैनिटाइज करने के लिए किस तरह से प्रोसीजर अपनाने चाहिए, किस तरह से उस रूम को उन्हें सैनिटाइज करना चाहिए ताकि बाकी लोग उस रूम का इस्तेमाल कर सकें? बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई पेशेंट्स भी हमसे पूछते हैं। एक बार इनके जो फादर हैं वो कोविड से रिकवर कर जाते हैं, और जिसकी गाइडलाइन भी बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर होम आइसोलेशन में है, 3 डेज एसिम्प्टोमेटिक हैं, फीवर नहीं है और 10 दिन हो चुके हैं, तो आप बिना टेस्ट कराए मान लेते हैं कि पेशेंट जो है कोविड से रिकवर कर गए हैं। जब वो घर से वो अपने रूम से बाहर आए, तो उसको रूम को आप 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से सैनिटाइज कर सकते हैं, चाहे वो उनका वॉशरूम है, चाहे उनका वो फ्लोर है, और उनके जो खिड़की दरवाजे हैं पूरी तरह से खोल के क्रॉस वेंटिलेशन जरूर करा दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल कोविड वायरस एरोसोल से एयरबॉर्न भी रह सकता है और कई घंटों तक वो हवा में रह सकता है। इसके अलावा जब वो रूम से बाहर निकलें तो मास्क फिर भी पहन के रखें हमेशा, और आप लोग भी जो उनके साथ हैं मास्क हमेशा पहन के रखें। अदरवाइज कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। अगर आप ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो संक्रमण का खतरा नहीं होगा। जी डॉक्टर रोहित, एक और सवाल हमारे पास आया है फेसबुक के जरिए। राम बाबू पूछ रहे हैं कि उन्हें 10 दिन से खांसी हो रही थी, सूखी खांसी थी पहले, और उसके बाद अब कफ आ रहा है उसमें, और फीवर नहीं आ रहा है पर कफ नहीं जा रहा है। ऐसे में उन्हें क्या सलाह दे रहे हैं आप? डॉक्टर डागा, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी जी, आपने सवाल पूछा है कि इनको फीवर नहीं जा रहा है। नहीं, फीवर इनको नहीं है। पहले सूखी खांसी आ रही थी 10 दिन तक, लेकिन अब ज्यादा खांसी आ रही है, तो फीवर नहीं आ रहा है लेकिन, तो ऐसे में क्या इनको करना चाहिए? देखिए, ऑक्सीजन लेवल पहले चेक करें और 6 मिनट चलने के बाद ऑक्सीजन चेक करें। अगर ठीक लेवल रहता है तो कुछ ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं और डॉक्टर से सलाह करके, और फिर अगर ऑक्सीजन लेवल में गड़बड़ है तो फिर जरूर इनको दवाई की जरूरत पड़ेगी। अगर खांसी ज्यादा है, थोड़ा इनहेलर ले सकते हैं शुरुआत में। अगर उससे आराम नहीं मिलता है तो फिर टैबलेट फॉर्म में भी दवाई दी जा सकती है। तो ये मॉनिटर करने की जरूरत है। अगर ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक है तो इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे खांसी भी सेटल हो जाएगी। यानी कि ऑक्सीजन लेवल इनको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा और देखना होगा कि ऑक्सीजन लेवल अगर नॉर्मल रहता है तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। एक और सवाल हमारे पास फेसबुक के जरिए आया है। जय कुमार पूछना चाहते हैं कि डबल मास्क की बात कर रहे हैं सब लोग, और एडिशनल मास्क, सर्जिकल मास्क के ऊपर एडिशनल मास्क पहनने के किस तरह के फायदे हैं? डॉक्टर अनूप, आप इनको बताना चाहेंगे जय कुमार को कि 2 मास्क पहनने की अब बात हो रही है, अगर सर्जिकल मास्क के ऊपर दूसरा मास्क पहना जाता है तो उसके किस तरह के फायदे हैं? बिल्कुल, देखिए इस समय हमारे पास एक रिसर्च आया हुआ है लैंसेट में कि जो 5 माइक्रोन से छोटे जो हमारे वायरस के पार्टिकल्स हैं वो एरोसोल्स के फॉर्मेट में एयर में रहते हैं। तो अगर उससे आपको बचना है तो इसलिए सिंगल लेयर से इस पे काम नहीं चलेगा, इसलिए डबल लेयर डबल मास्क की बात की जा रही है।
तो उसमें जो सर्जिकल मास्क है वो आप अंदर पहनते हैं और जो कपड़े का मास्क है उसको आप बाहर पहनते हैं, क्योंकि सर्जिकल मास्क को आप बार बार वॉश नहीं कर सकते, वो डिस्पोजेबल होता है, लेकिन जो कपड़े वाला मास्क होता है उसको आप धो के और सुखा के फिर रीयूज कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप दोनों मास्क को मिला के पहनेंगे तो आपका जो चांसेस है कि जो 5 माइक्रोन से कम के एरोसोल्स हैं वो उसके थ्रू फिल्टर नहीं होंगे, वो बाहर ही रह जाएंगे, वो अंदर नहीं आ पाएंगे और आप उससे बच सकते हैं। जहां तक N95 मास्क का सवाल है, N95 मास्क जो है इन दोनों से बेहतर माना जाएगा, लेकिन वो सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए रिकमेंडेड है, क्योंकि वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, उससे कॉस्ट भी ज्यादा होता है। इसलिए आम जनता के लिए जो डबल मास्क की आप बात करें बिल्कुल उपयुक्त रहेगा। अंदर से अगर सर्जिकल मास्क पहन ले, उसके ऊपर कपड़े का मास्क पहन ले, अगर आपका सर्जिकल मास्क भी नहीं है तो 2 कपड़े के मास्क पहन के भी अगर आप जाएंगे तो भी आपकी सुरक्षा ज्यादा होगी। जी जी, और एक और सवाल हमारे पास आया है डॉक्टर मृदुल, आपसे इसका जवाब जानना चाहूँगा। अनुपम गर्ग गाजियाबाद से, वो ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन उन्होंने लिया है और किसी ने सलाह दी है कि इसके साथ कुछ ब्लड थिनर्स भी लेने चाहिए, क्या ये सलाह सही है, क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आपको कोई इलनेस नहीं है, आप हेल्दी हैं, तो ऐसा कोई ब्लड थिनर लेने का रूल नहीं है। और अगर आपको ऑलरेडी कोई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी है, तो उसमें तो ज़्यादातर लोग ब्लड थिनर या ब्लड थिनर की जगह एंटी प्लेटलेट ड्रग, इकोस्प्रिन वगैरह लेते हैं, वो चालू रखिए। अदरवाइज एक्स्ट्रा कुछ आपको लेने की जरूरत नहीं। जी जी, और अगला सवाल डॉक्टर अनूप, एक और सवाल इसी से जुड़ा जानना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया क्योंकि अब शुरू हो गई है, 18 साल से ऊपर भी लोगों को वैक्सीनेशन दी जा रही है, तो ऐसे में जो अभी कोरोना पॉजिटिव के बाद नेगेटिव हुए हैं उन्हें कितनी देर तक इंतज़ार करना चाहिए वैक्सीन लेने के लिए, या फिर वो वैक्सीन ले सकते हैं उसके बाद? जब कोई कोरोना पेशेंट कोरोना से रिकवर कर जाते हैं उसके 4 हफ्ते तक उनको वेट करना पड़ेगा। इसके 2 कारण बताए जाते हैं। नंबर 1, अगर आप 4 हफ्ते से पहले जाते हैं तो क्योंकि जो कोरोना की एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में डेवलप हुई हैं और वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज डेवलप होंगी, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है और ऐसा माना जाता है कि वैक्सीन की एंटीबॉडीज जो है अच्छी तरह से नहीं डेवलप हो पाएंगी। यहाँ हम बताना चाहते हैं कि जो वैक्सीन की एंटीबॉडीज हैं वो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वायरस से बनती हैं, और जो कोरोना की वायरस इन्फेक्शन से एंटीबॉडीज बनती हैं वो पूरे वायरस के एंटीजन के हिसाब से बनती है। तो इसलिए दोनों एंटीबॉडीज में बहुत फर्क रहता है, एक तो उसमें इंटरेक्शन ना हो। नंबर 2, 4 हफ्ते तक हम इसलिए मना करते हैं कि जो कुछ वायरल के पार्टिकल्स अभी भी हमारे सिक्रेशंस में निकलते रहते हैं रिकवरी के बाद भी, और संक्रमण का जो खतरा है दूसरे लोगों को करने का वो हो सकता है। इसलिए 4 हफ्ते आप वेट करें, 4 हफ्ते के बाद आप जाके अपने को वैक्सीन लगवा सकते हैं। जी बिल्कुल, और डॉक्टर रोहित, आपसे एक सवाल फेसबुक पर हमारे पास आया है, आपसे इसका जवाब जानना चाहूँगा। आर के गोयल ये जानना चाहते हैं कि वो 2 लोग हैं एक परिवार में और किसी भी मेंबर ने पिछले 1 महीने से घर से बाहर कदम नहीं रखा है, और ऐसे में क्या कुछ चांसेस हैं, और कोई उनके घर में भी नहीं आया है, तो किस तरह के चांसेस हैं कोविड-19 इन्फेक्शन के, ये वो जानना चाहते हैं। क्या ये एयरबोर्न है और ऑक्सीजन लेवल क्या इनको मॉनिटर करने की ज़रूरत है? इस बारे में अभी इन्होंने ये नहीं लिखा कि किसी तरह के सिम्टम्स इनमें हैं या नहीं। देखिए, ये है कि भाई अगर घर के अंदर ये पहले से ही आइसोलेटेड हैं और बाहर नहीं जाते हैं तो कोविड होने की चांस और संभावना जो है ये काफ़ी कम हो जाती है। परंतु हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये 100% प्रोटेक्टेड रहेंगे और इनको कोविड नहीं होगा, ये कहना ठीक नहीं रहेगा। अब अगर हम ये सोचें कि ये एयरबॉर्न है या ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, इसके अंदर बहुत टिप्पणी रही शुरुआत में भी, और अब एक WHO ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये एयरबॉर्न भी हो सकता है, और कई लोगों ने तो ये माना है कि भाई ये अधिकतर एयरबॉर्न ही होता है। तो इस करके वातावरण में ये कीटाणु रहते हैं, वायरस रहते हैं। तो हम यही सलाह देते हैं सबको आज के दिन में कि भाई घर में भी अगर आप रहते हो तो मास्क पहन के ही रहो। घर में कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है या नहीं है, परंतु सभी को मास्क पहन के रखना चाहिए, ताकि अगर वातावरण में भी कोई इसके कीटाणु हो तो वो आपको प्रभावित ना कर पाए।
जी डॉक्टर रोहित, तो क्या ऐसे में जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, सोसाइटीज़ में रहते हैं, पास पास घर होते हैं, ऊपर नीचे फ्लोर्स होते हैं, तो उनको इस मामले में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? क्या खिड़कियां दरवाजे ज़्यादातर बंद रखें ऐसे मामले में? नहीं, देखिए, अब आज के दिन में जब हम ये सोचते हैं कि ये एयरबॉर्न है तो इसमें वेंटिलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो खिड़कियां दरवाजे बंद करने की बजाय हम ये कहेंगे कि खिड़कियां दरवाजे खोल के रखें ताकि वहाँ पे वेंटिलेशन रहे। और जहाँ तक कोविड के जो भी प्रिकॉशंस लेने की बात है, वो तो अब एक यूनिवर्सल प्रिकॉशन टाइप सी हो गई है, हर इंसान को लेनी है, चाहे उसके घर में कोरोना है चाहे नहीं है। हाथ धोना, मास्क लगाना और थोड़ा सा डिस्टेंस रखना, अपने करीबी लोगों से भी उसको डिस्टेंस रखना पड़ता है। ये नहीं कि भी घर में अगर हम हैं तो फिर हम बिल्कुल साथ साथ भी बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमको घर के जो जितने भी जन हैं उनसे भी अपनी थोड़ी दूरी बना के ही रखना चाहिए। तो ये यूनिवर्सल प्रिकॉशंस रखना बहुत आवश्यक है और इसकी अहमियत हम अब और भी ज़्यादा समझ रहे हैं, क्यों करके ये जो अब नया एक म्यूटेटेड वायरस आया है, कहते हैं ये ज़्यादा इन्फेक्शस है और परिवारों को इन्फेक्ट कर रहा है लार्जर नंबर्स में। तो सिर्फ एक इंडिविजुअल इन्फेक्ट नहीं होता, जिस परिवार में भी ये वायरस जाता है पूरे परिवार को इन्फेक्ट करता है। तो इस करके हम यही कहेंगे कि भी पूरी प्रिकॉशंस रखिएगा, ये ज़रूरी है, चाहे आप अपार्टमेंट्स में हैं, चाहे आप घरों में हैं, जहाँ भी हैं, ये यूनिवर्सल प्रिकॉशंस आपको अपनानी है। यानी कि अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशंस रखनी बेहद अहम है। डॉक्टर मृदुल कुमार, एक क्वेश्चन आया है हमारे पास फेसबुक पर। उपमा जी पूछना चाहते हैं कि 18 तारीख को वो कोविड पॉजिटिव हुए थे, उसके बाद से वो क्वारंटाइन में हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हल्का सा फीवर उन्हें रहता है। ऐसे में उन्हें क्या सलाह देंगे आप? डॉक्टर अनूप, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे कि 18 तारीख को वो कोविड पॉजिटिव हुए थे, उसके बाद से सब ठीक है, लेकिन हल्का सा बुखार उनको रहता है। तो जैसे आपने बताया 18 तारीख से क्वारंटाइन, मतलब हम ये समझ रहे हैं कि कोविड टेस्ट उनका पॉजिटिव आया है और 18 साल से आइसोलेशन में रह रहे हैं और अब ऑलरेडी जो है 2 हफ्ते हो चुके हैं, उनको फीवर अभी भी आ रहा है। तो देखिए, मैं इनको ये सलाह दूंगा कि आप एक विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार हम कुछ टेस्ट करके देखते हैं, जिसमें इन्फ्लामेटरी मार्कर्स देखते हैं। इनका ऑफ कोर्स ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना बहुत जरूरी है कि इस समय ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, और अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन इनका नॉर्मल है तो कोई चिंता की बात नहीं है। फिर भी हम इन्फ्लामेटरी मार्कर्स करके देखते हैं कि अंदर इन्फ्लामेशन कितना चल रहा है, और अगर जरूरत पड़ती है तो कई बार अगर फीवर परसिस्ट कर रहा है तो एक सीटी टेस्ट भी कराना पड़ सकता है, बट विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही। तो ये 2 चीजें पहले चेक करें, पहले ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है इनका, और इसके अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन इनका नॉर्मल से कम चल रहा है तो सबसे जरूरी है कि जाके विशेषज्ञ की सलाह पर ब्लड टेस्ट और एक सीटी टेस्ट करना पड़ सकता है। क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि जो कोरोना इस समय हो रहा है, पहले हफ्ते में तो सिर्फ अपर ट्रैक्ट में ही रहता है, दूसरे हफ्ते के बाद ये लोअर ट्रैक्ट में चला जाता है और लंग्स को इफेक्ट ज्यादा करता है, निमोनिया बहुत जल्दी बन जाता है और ये फीवर परसिस्ट करता रहता है। तो अगर समय पर ट्रीटमेंट ना करें तो ये घातक भी हो सकता है। तो इसलिए आप प्लीज एक विशेषज्ञ को दिखाकर जो है इसका एक बार इन्वेस्टिगेशन और करा लीजिए, क्योंकि फीवर परसिस्ट करना ठीक नहीं है आफ्टर 2 वीक्स भी, इसलिए हमें इसको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। यानी कि इस बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है अगर फीवर परसिस्ट करता है। हमारी सहयोगी प्रीति हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति, Yes, thank you, Teji. Dr. Anup Kumar, when we talk of home care and when we talk of isolation, we have been discussing of how a patient is to be given care. But what special care has to be taken for small or young children who are in the same house? Isolation can be done, but how prone are young children when a patient is home isolated? So definitely children are more prone because it's very difficult to keep the children in isolation, number one, and also to put a mask on kids which actually they are smaller than 5 years. So therefore it's very, very important if you have a kids in your house and one of your relative is COVID positive, you have to absolutely keep that kid away from that particular COVID person. Strict isolation of that person is important, but the kid also try to keep the mask on his face as long as possible, and you have to monitor the symptoms also, because the kids won't tell you the symptoms very easily. So you have to check yourself the temperature, you check, because he will not tell you that he is having fever.
to check the oxygen saturation. These two things you can do on your own as a mother, the saturation and the temperature. And sometimes kids, they stop feeding, they also complain of pain at the abdomen. And this year I can tell you, many patients are complaining of GI symptoms in COVID infection. And this is again a very worrisome, because most of the times we think that these symptoms are not related to COVID, but now this second wave, the COVID symptoms are also having GI symptoms. So pain in the abdomen, nausea, vomiting, diarrhea. So these are the symptoms we are seeing even in kids with COVID infection. So please keep on monitoring these symptoms. And if you have any of these symptoms, you have to immediately consult a pediatrician or a physician, because in kids you cannot take any chance because their immunity is lower than a normal individual. जी, और एक और सवाल हमारे पास फेसबुक पे आया है। गिरीश कुलकर्णी ये जानना चाहते हैं कि मुझे कफ है, 2 दिन तक बुखार था, अब नहीं है, और मुझे कौन सा टैबलेट लेना चाहिए? मैं अब अमोक्सिसिलिन और मंटेलिकास्ट टैबलेट ले रहा हूं, प्लीज बताइए। जी डॉक्टर सरीन। देखिए, आपको जो इनिशियल सिम्टम बुखार का और खांसी का रहा है, तो मैं ये कहूँगा सबसे पहले जो आपको करना चाहिए, अपना एक कोविड टेस्ट कराना चाहिए। ये तो सबसे एक पहली चीज़ है, और अगर आपने नहीं कराया अभी तक तो आप तुरंत जाइए और अपना कोविड टेस्ट कराइए। अब दूसरी चीज़ ये है कि भाई आपको इस खांसी के लिए कुछ दवाइयाँ लेनी है, तो आप एक एंटीबायोटिक ले ही रहे हैं तो वो आप लेते रहिए जब तक आपका कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती, और अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लीजिए। ये मान के चलिए कि आपको कोविड भी हो सकता है, और आपको अपने आप को आइसोलेट करके रखना है, और अपना सैचुरेशन भी आपको नापते रहना है। रिपोर्ट आ जाने के बाद फिर डॉक्टर की सलाह से आप आगे चल सकते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अति आवश्यक है कि पहले आपने आपको ये सस्पेक्ट कीजिए कि मुझे कोविड भी हो सकता है, और आपको जो भी एहतियात इस्तेमाल करनी है वो आपको करनी चाहिए। जी, और एक और सवाल हमारे पास आया है। प्रज्वल सिंह पूछ रहे हैं कि एक दिन फीवर आया था, फिर थ्रोट में दिक्कत आई, अब टेस्ट नहीं आ रहा है, सिम्टम्स एक आते हैं एक जाते हैं, और 10 दिन हो गए हैं लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल को। तो ऐसे में इनको क्या करना चाहिए डॉक्टर मृदुल? देखिए, 10 दिन हो गए हैं और फीवर ज़्यादा नहीं है, आता जाता है, और थोड़े लॉस ऑफ टेस्ट और ये है, तो हो सकता है कि अब ये धीरे धीरे अपने आप ठीक भी होने लगे, पर ऑक्सीजन मॉनिटर करते रहें। अगर कोई नया सिम्टम हो या फीवर तेज होने लगे तो ज़रूर फिर डॉक्टर से संपर्क करें अपना, और मार्कर्स भी कराएं इन्फ्लेमेटरी। अदरवाइज हो सकता है अगले 2-4 दिन में ये ठीक हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है, बट ऑक्सीजन जरूर मॉनिटर करना है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन आप बैठे हुए मॉनिटर करिए, फिर 5-6 मिनट वॉक करके फिर मॉनिटर करिए। वो हो सकता है सबसे अर्लीस्ट साइन हो आपको, पर इनकी जो लग रही है कंप्लेन, मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। जी प्रीति। All right, Dr. Sareen, we are talking of symptoms. Now, there are asymptomatic patients also who are, who are indoors. Now, if a person is feeling nauseatic, if a person feels, if he vomits and then he takes home remedy for that, if he takes home medication for that, and he is cured, does that person still have to look for other symptoms also related to COVID-19? Given the way these symptoms have changed this time around in the second wave for the virus? Well, I will agree with you on the fact that the virus has changed in terms of the symptomatology. We are having gastrointestinal symptoms, whether it is diarrhea, whether it is vomiting, abdominal ache, in addition to the other symptoms like fever and loss of taste, loss of smell, things like that. But even if the other symptoms are not there, and any symptom for that matter of this nature, what you described, one must always keep it in mind that this could be COVID. Earlier, we were not having this particular suspicion, but now today we have to start suspecting that this could be COVID. And whatever steps are required in an individual who may be suspected of having COVID, the same steps will apply here also. Whether it is doing the testing, whether it is self-isolation, whether it is, following the universal precautions, all of them will apply
even though the individual may have just vomited once or twice and may have taken some remedy for that. No, but that does not imply that one should not consider other reasons for the symptom. Other reasons for symptom of vomiting could be, a person may just have had a stomach upset, may have eaten something which doesn't suit that individual, and may start vomiting. May have some other intestinal infection, may start vomiting. So one has to keep the broader things in mind as far as the symptom is concerned. But yes, one must also, in addition to the other diseases, keep COVID in mind whenever one is evaluating any such symptom. जी डॉक्टर अनूप, एक सवाल जो बहुत से लोग अक्सर पूछते हैं, क्योंकि इस समय आपने जैसे बताया था पहले भी कि जब ऑक्सीजन लेवल एक लेवल से नीचे जाने लगे तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन बहुत से लोग घर पर ही ऑक्सीजन देने की तैयारी कर रहे हैं या उस तरीके की कोशिशें करते हैं। ये कितना एडवाइजेबल है? अगर एडवाइजेबल है तो ये किस तरीके से किया जा सकता है? और इसी से जुड़ा एक सवाल हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अगर घर में ऑक्सीजन देनी है तो उसका लेवल क्या रखा जाए? देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही काफी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन से पूछा जाता है। देखिए, ऑक्सीजन कब हमें देना पड़ता है? जब पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन सडनली ड्रॉप करता है, और जब 94 से कम होने लग जाता है तो हम कहते हैं वरी साइन है और आप तुरंत एक अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। और जब ये 90 से नीचे चला जाता है तब तो आपको ऑक्सीजन देना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूंगा सब दर्शकों को कि प्लीज घर पर रहकर ऑक्सीजन ना लगवाएं। अगर डॉक्टर सुपरविजन में, क्योंकि कई जगह ऐसे हॉस्पिटल हैं कि डॉक्टर्स आपको सुपरवाइज करके अपने सुपरविजन में घर में लगवा रहे हैं तो ठीक है, बट अपने आप से लाके सिलेंडर लाके और अपने आप रेगुलेटर लगा के आप लगा ले, इससे बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन का जो फ्लो और प्रेशर होता है वो डॉक्टर की सलाह से ही एडजस्ट किया जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा फ्लो उसको कर देंगे और उसका प्रेशर बढ़ा देंगे तो वो लंग्स को रप्चर कर सकता है, इसको न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं। दूसरा, अगर प्रॉपरली हमने इसको ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई नहीं किया तो उसके भी साइड इफेक्ट्स आते हैं और वो हमारे जो है लंग्स को डैमेज कर सकते हैं। तो घर पर आप अपने आप तो बिल्कुल भी ना लगाएं। आप जब भी आपका सैचुरेशन 94 से कम हो जाता है डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि उनकी सुपरविजन में आपको लगवाने के लिए वो घर पे बोल रहे हैं तब आप लगा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के निर्देश अनुसार आप प्रेशर और फ्लो एडजस्ट करते रहें। नॉर्मली हम लोग स्टार्ट करते हैं लो प्रेशर से और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो फिर हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं, क्योंकि हाई फ्लो अगर आपको प्रेशर जरूरत पड़ रहा है ऑक्सीजन का तो फिर आपकी सही जगह अस्पताल में है, घर में नहीं। जी डॉक्टर साहब, इससे जुड़े कुछ ऑक्सीजन से जुड़े कुछ और अहम सवाल भी हम लेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, महेंद्र पाल हैं उत्तराखंड से। डॉक्टर मृदुल, इनका सवाल सुनिएगा। और महेंद्र जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, यहाँ पर जो बैठे सभी डॉक्टर पैनल के लिए मेरा सबसे पहले नमस्कार। और मैं ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ, जो नया रूप आया है कोरोना का, इसमें घर में रहते हुए हम किस तरीके से बच्चों का, अपना घर परिवार का किस तरीके से हम अपनी खुद की सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की तो इस समय बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है। किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर जी डॉक्टर मृदुल जी, आपका सवाल पहुंच चुका है। डॉक्टर मृदुल बताना चाहेंगे इनको? हाँ जी, देखिए, घर में रहते हुए पहले भी डॉक्टर साहब ने बताया है कि एक तो बिल्कुल आप बाहर ना जाएं जहां तक अवॉइड कर सकें, और लोगों से मिलने की जरूरत नहीं है, किसी से भी, अपने दोस्तों से, परिवार वालों से। और अगर घर में आप में से किसी को कोई भी हल्का सा सिम्टम भी हो रहा है, वो शायद बदन दर्द हो सकता है, शुरुआत में केवल गले में खराश हो सकती है, या जुकाम हो सकता है, या उल्टी दस्त जैसा शुरू हो गया है, या हल्का बुखार है, तो सबसे पहले आइसोलेट करें उस व्यक्ति को। और ये ध्यान रखें कि सब लोग मास्क पहनना शुरू कर दें घर में। कपड़े का मास्क ठीक है। और दूसरा ये करें कि अगर फिर भी लगता है आपको कि आप किसी के संपर्क में आए, या कोई आपको बताता है कि भाई मैं आपके संपर्क में था 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, और मुझे कोरोना हो गया है, तो आप ध्यान रखिए। अगर अगले 2-4 दिन में आपको भी कोई सिम्टम हो जाते हैं तो आप अपना टेस्ट कराइए, पर जब तक वेट करते हैं तब तक अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, क्योंकि अब ये बीमारी इतनी जल्दी से फैल रही है और पता ही नहीं लगता है कि आपको कहाँ से आई है। और फिर जो प्रिकॉशन सारे हैं वो आपको लेने हैं और ये ध्यान रखना है। और ऑक्सीजन अपने घर पे ला के रखने का जो एक प्रवृत्ति हो गई है, लोग
और जिससे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोग अपने घर पे सिलेंडर ला के रख लेते हैं, हालांकि उनको जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ना करें। दूसरों की मदद करनी है आपको, जिनको जरूरत है उनके पास होना चाहिए, ये सब ध्यान रखें। All right, Dr. Sareen, we're getting questions on Facebook. We have this question coming in from Mr. Yugal Pandey. He says, how many days cough can remain in home isolated patients? Now, this is one aspect. Added to that, if a person, after having tested positive and having got cured, got cured through home isolation, but still, if these symptoms are persisting, say cough or cold is still persisting, what has to be done even after the person has tested negative for the second time? Well, I think every individual in that sense is different from the other, and we have observed that in certain patients, the post-COVID sequelae are much more pronounced as compared to others, and even the COVID infection in some is more severe than others. Now, what determines this particular symptomatology of cough is really how sensitive is your airway or your respiratory system in this. Now, certain individuals who have this more tendency to bronchial hyperreactivity, certain individuals who have predisposition to asthma or family history of asthma, or who have any other allergic phenomena, these are the individuals wherein cough will remain even after the COVID infection has gone away. We all know that the virus itself, in terms of its multiplication and its virulence, loses its strength after 9th to 10th day of the infection. But the effects of this virus that continue to remain, that can remain longer even, and certain times the individual continues to cough for 2 to 3 weeks after that also. Do not get worried. Just take medication for that cough, whether it is in the form of cough suppressants, or if you are a person who is allergic, consult your doctor and you may be given or advised some inhaled form of therapy to take care of your bronchial hyperreactivity. जी डॉक्टर अनूप, एक फेसबुक पर सवाल आया है, दिल्ली से रोहित हैं, ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने 1.5 हफ्ते पहले प्लाज्मा डोनेट किया था, तो ऐसे में क्या इनको सतर्क रहने की ज़रूरत है? क्या जो प्लाज्मा इन्होंने डोनेट किया है उसके बाद इनकी बॉडी में एंटीबॉडीज कम हो जाती हैं? जी बिल्कुल, ऐसी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस कई लोगों के दिमाग में रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने प्लाज्मा देके बहुत ही पुण्य का काम किया है। आपके प्लाज्मा देने से 2 मरीजों की जान बच सकती है, और आपने जब प्लाज्मा दिया आपसे आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज आपके बॉडी से गई हैं वो एंटीबॉडीज बहुत ही कम मात्रा में निकाली जाती हैं, और आपके एंटीबॉडीज की मात्रा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसलिए आपको ना कोई कमजोरी आएगी, ना आपकी इम्यूनिटी कम होगी, और आपकी लेकिन जो आपके प्रिकॉशंस हैं, जो अभी हम बात करते आए हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो आपको फॉलो करते रहना है। और प्लाज्मा देने के बाद आपके ऊपर कोई अलग रिस्क नहीं है कोविड होने का। इनफैक्ट आपने बहुत ही पुण्य काम किया, और आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपने किसी की जान बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट किया। जी प्रीति। जी yes, thank you Teji. We are getting question on Facebook. Mr. Raj Gupta wants to say वैक्सीनेशन होने के बाद क्या एहतियात हमें बरतनी चाहिए? Dr. Daga, would you take that question? Added to that, there are doubts among many people. What is to be done if a person gets fever, mild fever after vaccination? Does that mean that the body is responding well to the vaccine? Or put it otherwise, what does it mean if a person is not getting fever after vaccine? I would want you to answer both the sides of the question. Yeah. I think it's a very pertinent question, and there is a lot of anxiety about this. So we have had in last 3-4 months a lot of people inquiring about it. So if you are getting fever after 4-8 hours or maybe next day, it's a good sign. It's a good sign that yes, you would develop some antibodies and immunity against this virus. But there are many who do not get any. So, but do not worry, because we know that the vaccine efficacy varies from 70 to 80%, 85%. So everyone would not develop antibodies. And then this response is variable depending on individual. Every individual is different.
So, but for that reason, if you don't take your next dose, that's not correct. Please follow the full protocol. Still, if your fever persists more than 48 to 72 hours after taking vaccine, then get in touch with your doctor. It may be just that you have little more prolonged fever, but maybe that when you took vaccine, you already had got exposed to someone a day or 2 days before, and you might be developing a COVID as well. But do not worry, you'll be treated as anyone with COVID would be treated. So then get in touch with your primary care physician and get an appropriate treatment. डॉक्टर साहब, इसी के साथ एक जोड़ना चाहूँगा, एक सवाल और फेसबुक पर आया है कि उन्होंने जब वैक्सीन का डोज लिया तो उसके 2 दिन बाद वो कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए। उनका कहना है कि शायद उन्होंने पहले से ही कहीं कांटेक्ट कर लिया होगा, लेकिन ऐसे में वो सेकंड डोज के बारे में क्या करें, क्योंकि वो अभी पॉजिटिव हो गए थे? क्या उनको रेगुलर टाइम इंटरवल पे जो सेकंड डोज लेना था उस पर लें या इंतजार करें? क्या करना चाहिए ऐसे में उनको? देखिए, बहुत इसमें डिस्कशन है, बहुत सारे पेपर्स हैं एंड देयर आर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ये कहा जाता है कि अगर आपको कोविड हो गया है तो आप 3-4 वीक बाद लीजिए वैक्सीन, पर अगर आपका 4 वीक बाद नेक्स्ट डोज ड्यू है तो आपको अननेसेसरली उसको डिले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ले सकते हैं। CDC की गाइडलाइंस हैं कि आप ले भी सकते हैं। 2 वीक के अंदर अंदर भी आप डेवलप होने के 2 वीक बाद भी आप वैक्सीन अपना ड्यू है तो वो ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा डिले भी कर देंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि नहीं मैं 4 वीक बाद लूँ इस डेवलप होने के बाद, और वो हो सकता है आपके शेड्यूल से 15 दिन और लेट है, तो वो भी ले सकते हैं। क्योंकि अभी हम ये सीख रहे हैं कि क्या ये जो 2 वैक्सीन ले रहे हैं आपको पूरा 1 साल प्रोटेक्ट करके रखेगा, या आपको 6 महीने तक प्रोटेक्ट रखेगा और 6 महीने बाद आपको 1 डोज और लेना पड़ेगा। क्योंकि कुछ वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने ये कहा है, जैसे कोवैक्सीन ने कहा है कि हो सकता है कि आपको 6 महीने बाद तीसरा डोज भी लेना चाहिए। या जैसे फ्लू के लिए वैक्सीन लगता है, जो फ्लू के लिए वैक्सीन लेते हैं वो हर साल लेना पड़ता है, तो हो सकता है। तो इसके बारे में हम अभी सीख रहे हैं। अभी हमें 5 महीने 4 महीने हुए हैं ये वैक्सीन लेना शुरू किए हुए, तो हमें आने वाले समय में इसके बारे में पता लगेगा। लेकिन सिम्टम या पॉजिटिव होने के 2 वीक बाद भी आप वैक्सीन ले सकते हैं, चाहे तो आप 4 वीक बाद भी ले सकते हैं। और उसमें अगर आपका दोनों वैक्सीन के बीच का गैप जो 4 वीक से 6 वीक भी हो गया या कभी 8 वीक भी हो गया तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। All right, Dr. Sareen, for patients who are in home isolation and who have recovered from COVID, what care still has to be given to them, diet-wise? If a person is feeling lethargic, if the person is feeling weak, if there is loss of appetite, what has to be done in that case? You know, it is a very common thing that after this particular infection, the general health of the patient goes down in terms of the strength of the individual, in terms of, you know, this feeling of malaise and all that. So that will continue even beyond the infection or the infective phase. So I would suggest that one continues to take, first of all, is normal diet. That is very clear. And the vitamin aspect of it can continue on for another 2 weeks. It's not that, okay, once the infection is over, we stop these vitamin C and all that. That can continue on for another 2 weeks. And, you know, generally speaking, the rest of the precautions will continue to be there. Even if you've had the infection, you got cured, that doesn't mean that you now do away with your hand washing or your mask or your distancing. That particular precautions will remain with you now till the time that this particular infection goes away from the country or from the world, which is a very remote possibility in the near future. So I will say continue following the precautions, take a good and healthy diet, concentrate more on proteins. If you are a vegetarian, go more on the dals and you know, beans and bean products like soya bean or rajma or something like that. If you are a non-vegetarian, you can take eggs, you can take other non-vegetarian diet. Focus on vitamins, focus on fruits, focus on vegetables. These are the things that you know, one has to take, which in our normal Indian diet it is there. So we just have to
ensure that we are taking them in adequate quantities. जी डॉक्टर अनूप हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, आप इनका सवाल सुनिएगा और इनका जवाब दीजिएगा। सुरेंद्र कुमार है हमारे साथ दिल्ली से। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, ये मैंने आज से कुछ दिन पहले कोवैक्सीन लगवाई थी, जिसकी डेट आज है, सेकंड डोज की। जी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इस दौरान में मुझे फीवर चढ़ा था, लेकिन इस टाइम मैं नॉर्मल हूँ। नॉर्मल हुए मुझे 3-4 दिन हो गए, तो क्या मैं दूसरी डोज लगवा सकता हूँ? जी डॉक्टर। जैसे उन्होंने बताया कि पहली डोज तो लगवा चुके हैं, सेकेंड डोज का टाइम आया, लेकिन कुछ दिनों पहले इनको फीवर हुआ था। उस समय इन्होंने टेस्ट कराया कि नहीं, ये इन्होंने नहीं बताया शायद, तो एक सस्पिशन रहेगा कि इनको कोविड हो सकता है कि हुआ हो। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि अगर आपको 3-4 दिन पहले ही फीवर आया है और अब वो सबसाइड कर गया है, तो भी बेटर यही रहेगा कि अभी आप वेट करें अपनी सेकंड डोज के लिए, और 2 हफ्ते के बाद आप जाके लगवा सकते हैं। इसके 2 फायदे रहेंगे। नंबर 1, अगर आपको कोविड इन्फेक्शन भी हुआ है तो वो 2 हफ्ते के टाइम में वो आपका पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा, तो इससे आप किसी और को संक्रमित नहीं कर पाएंगे वैक्सीनेशन साइट पर। नंबर 2, जब हम वैक्सीन लगाते हैं, मैंने पहले बताया कि जो एंटीबॉडीज बनती हैं, अगर आप एक्टिव इन्फेक्शन में वो वैक्सीन लगाते हैं तो एंटीबॉडीज अच्छी नहीं बनेंगी, तो इससे आपका नुकसान रहेगा। वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको एंटीबॉडीज अच्छी नहीं बन पाएंगी। तो अभी आप 2 हफ्ता वेट कर लीजिए, तब तक पूरी प्रिकॉशंस रखिए, आइसोलेट रखिए अभी अपने आप को। आप मान के चलिए कि आप सस्पेक्टेड कोविड केस हैं, क्योंकि आपने अभी तक टेस्ट नहीं कराया है। 2 हफ्ते तक आप अपने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और आइसोलेशन में रखें। हो सके तो आप टेस्ट करा सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा, इससे वो कंफर्म हो जाएगा, और 2 हफ्ते के बाद आप वैक्सीन लगवा दें। All right. We will put this next question to Dr. Daga. Uma Shankar Yeah. Devgan on Facebook is asking that can MD or TB patients, can they take vaccines for the last 7 months? The medicine, he's been taking medicine for this. Can he go in for a vaccine? Yes, he can take vaccine. There is no issue. Absolutely. जी He should take. जी डॉक्टर अनूप, अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि ये किडनी से जुड़ा हुआ सवाल है। इनका कहना है कि इनके पापा की एज 52 इयर्स है और उन्हें लास्ट ईयर कोरोना हुआ था, और उनकी साथ ही उनकी किडनी स्किन की मेडिसिन चल रही है, उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है। क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं? एक और हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने फेसबुक पर इसी से मिलता जुलता एक सवाल और पूछा है कि उनकी बाय बर्थ एक किडनी है, क्या कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है उनको वैक्सीन लेने में? बिल्कुल, देखिए, अगर आपकी एक ही किडनी है या आप क्रॉनिक किडनी डिजीज से ग्रसित हैं, दोनों ही कंडीशंस में आपको कोविड होने का रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि आप बिना किसी झिझक के जाकर वैक्सीन लगवा लीजिए। वैक्सीन लगवाने से आपके कोविड होने के चांसेस नंबर 1 कम हो जाएंगे। अगर कोविड हो भी जाता है तो आपको सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, नीड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन और आईसीयू आपके काफी कम हो जाएगा, और मोर्टेलिटी भी आपकी बहुत मिनिमल हो जाती है। एक बात और कहना चाहेंगे, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है और इमीडिएटली अभी 2-3 महीने पहले ही ट्रांसप्लांट हुआ है, उनके लिए कहा जाता है कि वो कुछ दिन वेट करें। जब इनके इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स को हम स्टेबलाइज कर देते हैं और हाई डोज स्टेरॉइड से हम लो डोज पर ले आते हैं स्टेरॉइड, तब वो जाकर वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि अभी उनकी जो कंडीशन है वो वैक्सीन, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत डाउन है तो आपके अंदर इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से वैक्सीन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करेगी। सिर्फ उन्हीं के लिए मेरा एक संदेश है कि वो अभी ना लगवाएं जिनका इमीडिएट ट्रांसप्लांट हुआ है पिछले 1 महीने में। अदरवाइज कोई भी किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं वो जाकर बिना संकोच वैक्सीन लगवाएं, इससे उनको बहुत फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल। और एक सवाल डॉक्टर रोहित सरीन आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेज से हैं, शायद आपको कुछ दर्शक पहचानते हैं, और कई सारे सवाल ट्यूबरक्लोसिस से जुड़े हुए हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि अगर उनका इससे संबंधित मेडिसिन चल रहा है, कोई वैक्सीन लेने में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं होगी उनको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि ये अति आवश्यक है कि ये जो भी मरीज़ टीबी से ग्रसित है वो ये वैक्सीन आवश्यक ले। अगर किसी के माइंड में शक भी है तो भी उसको ये वैक्सीन हमेशा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं लेगा ये वैक्सीन और उसको ये बीमारी हो जाती है तो फिर उसके अंदर बीमारी
का जो प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये माइल्ड नहीं रहती है, ये मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में पहुंच जाती है, और जिसमें फिर कई बार डॉक्टर भी अपना कोशिश करने में नसमर्थ हो जाते हैं। तो इस करके मैं ये कहूँगा कि ये देखा गया है, इतनी स्टडीज़ हुई हैं कि जो टीबी का मरीज़ है जिसके लंग्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, अगर उसको कोविड हो जाता है तो उन केसेस में मॉर्टेलिटी भी ज़्यादा है और सिम्टोमेटोलॉजी भी ज़्यादा है। इस करके ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप ये कोविड का वैक्सीन आवश्यक लें। जी All प्रीति। right, Dr. Saga, we have got this question on our Facebook page wherein the person wants to know that he is 68 years old and he's living alone and he's dependent on a maid. So what special care he has to take, when we talk of home care in these times? So, sorry, he's living alone. He's 68 years, and what you said next? He's completely dependent on a maid, and maid also, is doing work in other households as well. Oh, yeah. That's a very critical question, I think. If we can avoid, because if the maid is visiting other households, you never know how would you get and what time you would get infected with COVID. So ideally, if he can take help of something else, that he can get meals at his house delivered by someone. There are a lot of organizations who are doing it. A lot of family, friends, or close ones can do that. Or he ensures that the maid doesn't go to any other house, at least for these couple of weeks, which are very, very critical. Otherwise, it is very, very difficult to control. One rare option would be that when maid is there working in the house, he remains outside, and both of them continue to wear masks. She does her work, cooking, and goes away without coming in contact with him. But again, that's little risky. But if there is no other option, that can be done. And if maid has any symptom, any point of time, she should not come. So he should check every day when she comes, her temperature, those things should be asked. But ideally, it would be that no, if persons are working in multiple houses, you have to be very, very cautious. जी डॉक्टर अनूप, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, सुरेंद्र राणा हैं जम्मू से। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए आप। नमस्कार सर, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये रहेगा कि मेरी मदर लीवर सिरोटिक पेशेंट थी, तो वो सर कोविड पॉजिटिव हो गई ऑन 9 अप्रैल सर। तो उसके बाद सर मेडिकेशन पे रख के शी टर्न नेगेटिव ऑन 22 अप्रैल 2021 बाय डूइंग RT-PCR. But in the meanwhile, sir, we did HRCT, which was showing some mild bilateral pneumonia, sir. So, but the suggestion level which she maintained from that 9th April to till date is 97 to 99, with having no fever. I think that was fever was about 98.6 to 99. So I request it's my humble plea to our esteemed doctors that to suggest me what to do or what not to do. देखिए, जैसे उन्होंने बताया कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट इनकी ऑलरेडी आ चुकी है। अब ये एसिम्प्टोमेटिक बता रहे थे, लेकिन सीटी टेस्ट में कुछ चेंजेस बताए हैं कि बायलेटरल पेरिफेरल लंग्स में थोड़ी ओपेसिटी है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, जो कोविड वायरस होता है इसमें कई पेशेंट्स में, जैसे मैं पहले बता रहा था, फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में जब प्रोग्रेस करता है वायरस, तो लंग को डैमेज शुरू करता है। वो जो चेंजेस होते हैं उसमें ओपेसिफिकेशन और कंसोलिडेशन हो जाता है लंग्स के अंदर, वो कुछ टाइम तक रहता है। इसलिए अगर आपने सीटी कराया, उसमें आपको कुछ कंसोलिडेशन दिख रहा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर पेशेंट का SpO2 मेंटेन कर रही हैं, एफिब्राइल है, कोई डिस्निया यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं है, सिम्टम्स नहीं है, तो कोई चिंता की बात नहीं। ये जो चेंजेस हैं लंग में, ये रहने वाले हैं। सीटी में चेंजेस रहने वाले हैं कुछ समय तक, और भी 2 से 3 महीने तक ये टाइम रह सकता है। बाद में जाके फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है इसमें। लेकिन इस दौरान आप ये कर सकते हैं, अपने माता जी को बोले वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आजकल हम सभी को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि प्रोन होकर आप आधा घंटा प्रोन लेटें, फिर साइड में आधा घंटा लेटें, फिर बैठ जाएं, फिर साइड में लेट जाएं। ऐसे करके अपनी पोजीशन चेंज करते रहें। इसमें रिकवरी ऑफ द लंग्स बेटर होती है। नंबर 2, चेस्ट फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस होती हैं। आजकल पोस्ट कोविड क्लिनिक्स हर एक स्टेट में खोले हुए हैं, वहां पर फिजिशियंस आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन देके बताते हैं कि कैसे आप चेस्ट फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, जिससे आपकी लंग जल्दी रीजनरेट करता है, जल्दी रिकवर करता है।
तो ये 2 चीजें आप कर सकते हैं जिससे आपकी रिकवरी फास्ट होगी। बट अभी इस सीटी चेस्ट की फाइंडिंग से घबराइए मत, उनका सैचुरेशन आप फॉलो करते रहिए, उनको मॉनिटर करते रहिए। आप देखेंगे कि पिछले अगले 2 हफ्ते के बाद वो और अच्छा रिकवर कर जाएंगी, और उसके बाद उनको फॉलोअप में रखिए। जी डॉक्टर मृदुल, क्योंकि आज का हमारा कार्यक्रम, अब हमारे पास समय बहुत ही कम बचा है और आज का जो हमारा कार्यक्रम होम आइसोलेशन से संबंधित था, एक बार आप प्लीज समाप्त करना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों के लिए कि किन केसेस में होम आइसोलेशन से जो कोविड पेशेंट्स हैं वो ठीक हो जाते हैं और कब उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और घर पर अगर हैं तो किस तरह के चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये, और सभी दर्शकों को ये जानने की जरूरत है कि सबसे पहले तो आप कोविड पॉजिटिव होते हैं या सिम्टम्स होते हैं तो आइसोलेट करना है और पैनिक ना हो, बिकॉज 85% लोग, 90% लोग घर पे रहते हुए ठीक हो जाते हैं। और अगर आपके सिम्टम्स 5 से 7 दिन के बाद भी, और उसमें जो मैंने शुरू में कहा था, ऐसे सिम्टम्स जिसमें तेज बुखार जारी रह रहा है, या आपको खांसी शुरू हो गई है नहीं, या आप जब बात कर रहे हैं तो आपको थोड़ा भारीपन लग रहा है, उस समय आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। उसके पहले 5-7 दिन आप अपना ऑक्सीजन जरूर मॉनिटर करते रहें। ऑक्सीजन मॉनिटर करने के साथ नए सिम्टम्स आते हैं तो ऑक्सीजन आप बैठे हुए और 5-6 मिनट चलने के बाद, या 4 मिनट जितना चल सकते हैं उसके बाद वापस मॉनिटर करें, कहीं उसमें ऑक्सीजन फॉल तो नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर को संपर्क करें। और जब बहुत सारी दवाइयां जो दी जाती है, मैंने देखा है एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, विटामिन सी, जिंक, कम से कम 8-10 दवाइयां हर एक को दी जाती है। उसमें से ज़्यादा दवाइयों का रोल नहीं है। विटामिन, जिंक, विटामिन सी लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आइवरमेक्टिन भी आप 2 या 3 दिन ले सकते हैं, दिन में एक बार। पर कुछ लोगों को ये दवाइयां लेने से उल्टी दस्त शुरू हो जाते हैं और हम ये समझने लगते हैं कि बीमारी से भी है, और उस समय ये पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो ये जरूरी है कि आप दवाइयां ऐसे ना लें जी, अपने आप को आइसोलेट रखें। अगर आपको सिम्टम्स पहले दूसरे दिन से ही ज्यादा हैं, खांसी ज्यादा हो रही है, तो आप संपर्क करके डॉक्टर से खांसी के लिए इनहेलर पहले दूसरे दिन भी शुरू कर सकते हैं। और अगर ज्यादा नहीं है तो आप अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज करिए, मे बी स्टीम लीजिए दिन में 2-3 बार, और कुछ तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। पर अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर को संपर्क करिए और आइसोलेशन रखिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर एक साहब। बात और कहना चाहूंगा मैं कि मास्क भी पहने रहिए आप घर में। बिल्कुल, आप सबसे अहम, कमरे में हैं तो भी मास्क पहने रहिए। बिल्कुल, मास्क पहनना बेहद अहम है। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनूप, डॉक्टर मृदुल, डॉक्टर रोहित, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से इस वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, हमारे इस प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो सलाह लोगों के यकीनन बहुत काम आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस शो में आने के लिए, और शुक्रिया प्रीति इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन कुछ सवाल फेसबुक पर, क्योंकि लगातार सवाल आ रहे थे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल थे वो हम लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्योंकि बहुत सारे सवाल लोगों के आ रहे हैं, इसलिए डीडी न्यूज़ ने भी पहल की है कि दिन में 3 बार अब डॉक्टर स्पीक आता है। इसके बाद अगर आपके कोई सवाल रह गए हैं, आप हमारे डॉक्टर से पूछना चाहते हैं जो हमारे पैनल में आएंगे, तो आप 3 बजे एक बार फिर से फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए या फिर फ़ोन लाइन के ज़रिए कनेक्ट हो सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।